In our earlier lectures, we have discussed a general account on recombinant DNA technology in part 5. Today, we will discuss in detail about the recombinant DNA technology, the different techniques in the recombinant DNA technology. Now, generally, while discussing with the recombinant DNA technology, the following techniques are generally used: electrophoresis, restriction endonucleases, vectors, PCR, and DNA or gene sequencing. Today, we will discuss in detail about the electrophoresis. Electrophoresis क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस वह टेक्निक है जिससे in a mixture of solutions where a number of molecules of different molecular weights are present, to separate these molecules of different molecular weight under electric current. In electric current, the different component of a solution with a different molecular weight will be separated based on their molecular weight in a current, in an electric current. Okay, this is the electrophoresis technique. There are 2-3 types of electrophoresis generally we use in recombinant DNA technology. Number 1, the types of electrophoresis. Types. First is SDS PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. That is the पेज. इसमें अपन SDS पेज, जनरली इसको SDS पेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो जेल बनती है, जेल पॉलीएक्राइल एमाइड की बनती है और सोडियम डोडेसाइल सल्फेट इसमें सारे के सारे प्रोटीन्स को नेगेटिव चार्ज देने के लिए डाला जाता है, SDS. जनरली वी यूज SDS पेज इन द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स of different molecular weight. SDS पेज जिसमें पॉलीएक्राइलामाइड जेल बनाई जाती है और जनरली ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है. इलेक्ट्रोफोरेसिस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट है वह हॉरिजॉन्टल means from left to right or right to left, whereas in vertical the electrophoresis, the flow of current from high ऊपर से नीचे की तरफ. इस जेल वर्टिकल डायरेक्शन में रहती है और हॉरिजॉन्टल में जेल ऐसे पड़ी रहती है. if gel is here, this is a gel, and electric current from negative to positive in this direction, then it is horizontal electrophoresis. When gel is placed in this direction and current is placed from here to here, then it is a vertical electrophoresis. प्रोटीन्स को आप वर्टिकल भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो. SDS पेज is specially for the protein. तो पॉलीएक्राइलामाइड जेल के
पॉलीएक्रिलामाइड जेल का पॉलीएक्रिलामाइड यूज करते हैं जेल को बनाने के लिए, बफर में डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद जेल बनाते हैं। और उस जेल में इलेक्ट्रिक करंट है वह एक एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ चलता है और करंट में प्रोटीन्स, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है। तो दिस इज एसडीएस पेज। एसडीएस पेज में प्रोटीन्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के सेपरेट किए जाते हैं, उसके बाद उन प्रोटीन का एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग की जाती है और उसके बाद एमिनो एसिड सीक्वेंस करने के पश्चात उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोटीन है विथ नोन मार्कर प्रोटीन्स। सेकेंड, दूसरा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है दैट इज एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट एसडीएस पेज, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जिसके अंदर अपन जेल को एगेरोस से बनाए जाते हैं। एगेरोस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द जेल। सो एगेरोस क्या है, उसको एक बफर के अंदर, ट्विस्ट बफर में डिसॉल्व करके, बॉइल करके आप जेल में डालते हो तो जेल जो बनाई जाती है एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो एगेरोस। और दिस इज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए, जीन जो कुछ भी है वो एगेरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट की जाती है। थर्ड इज 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको अपन IEF भी कहते हैं, दैट इज आइसो इलेक्ट्रो फोकसिंग। IEF ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस डीएनए को सेपरेट करती है। These are the three types of basic electrophoresis. This is also called a 2D electrophoresis. Means first you separate whether it's protein or DNA with the help of a 1D electrophoresis. Then you go for the IEF or 2D electrophoresis. So these are three types of electrophoresis. अब electrophoresis का basic methodology क्या है? What is the principle of electrophoresis? Types आपके समझ में आ गई। Types है जो electrophoresis के लिए कौन कौन से हैं? एक तो SDS पेज है, दूसरा एगेरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो कि हमेशा हॉरिजॉन्टली किया जाता है और उसमें एगेरोस है डाल के जेल को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद IEF जो आइसो इलेक्ट्रोफोकसिंग है वह उसके अंदर प्रीपेड जेल की ट्यूब्स आती है। अब बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि इसके प्रोसीजर्स में क्या प्रोसीजर है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इस प्रोसीजर में क्या है, देयर इज वन जेल कास्टर। जेल कास्टिंग होती है, एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जिसमें जेल कास्ट की जाती है, जेल को बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट टैंक होता है। इसके अंदर एक टैंक होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है जिसमें करंट चलता है। और थर्ड इज इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और फोर्थ इज पावर सप्लाई। जनरली अपन चाहे डीएनए है चाहे प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए अपन 50 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, किसमें, जेल के अंदर। अब इसमें इफ वी स्टार्ट द रियल प्रोसीजर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक in recombinant DNA technology we use agarose gel. So I will discuss in detail about the agarose electrophoresis for separation of
DNA of different molecular weight or different weight. So first of all, you take a beaker. In a beaker, you add the Tris buffer, TAE buffer. TAE बफर डाल के इसके अंदर 0.8% एगेरोज डाल देते हैं. वी हैव टू बॉइल इट. इसको बॉइल करते हैं. बॉइल करने के बाद इसके अंदर आप ETBR डालते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड. ETBR तो एगेरोज इसमें है 0.8%. कोई 0.8% बनाता है, कोई 1% बनाता है, कोई 1.5% बनाता है एगेरोज की जेल. तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. ETBR 0.8% agarose and TAE buffer. Both you add after cooling. You add ethidium bromide. Ethidium bromide क्या है? ये एक फ्लोरोसेंट डाई होती है जो कि DNA के साथ अटैच हो जाती है, इथीडियम ब्रोमाइड. और ऐसे जो ही DNA के साथ ये बाइंड करता है इथीडियम ब्रोमाइड, और UV लाइट देने के बाद यहाँ जहां जहां DNA पड़ा हुआ है वहां इथीडियम ब्रोमाइड अटैच हुआ होता है उसके साथ, और वो ग्लो करता है, फ्लोरोसेंस करता है UV लाइट में, जिससे ये पता चल जाता है कि DNA यहाँ जेल पे पड़ा हुआ है, DNA के बैंड्स जेल पे पड़े हुए हैं. तो इन द प्रोसेस फर्स्ट यू टेक द TAE बफर, देन यू ऐड 0.8% agarose, boil it after a lower temperature, in the lower temperature, और कुछ ठंडा होने के बाद ETBR डालते हैं. ETBR डालने के बाद जेल कास्टर के अंदर ये यू हैव टू पोर इट. इसको एक जेल कास्टर होता है, जेल कास्टर में अंदर एक ट्रे होती है. इस ट्रे के अंदर इज अ ट्रे, और यहां पर इस ट्रे में ETBR, TAE बफर एंड एगेरोज डाल के जो ये कूल होता है, आफ्टर 30 मिनट्स जेल पॉलीमराइज हो जाती है. ये जेल जम जाती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक कोम डालते हैं. तो इस टाइप का एक कोम होता है. ये अंदर डाल देते हैं इस ट्रे के अंदर. तो जो ये जमता है, जो ये पॉलीमराइज होता है, इसके अंदर वेल्स बन जाते हैं, और अ जेल विल बी लुकिंग लाइक दिस. इसके अंदर छोटे छोटे वेल्स बन जाते हैं. These are wells. यह जेल है जिसके अंदर छोटे छोटे वेल्स बने हुए हैं. इस जेल को आप इलेक्ट्रोलाइट टैंक के अंदर डाल दीजिए और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कीजिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट टैंक. इस इलेक्ट्रोलाइट टैंक के अंदर ये एज इट इज ये जेल पड़ी हुई है. दिस इज द जेल, और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे. जेल डूब जाती है इलेक्ट्रोलाइट में, एंड देन 80 वोल्ट का करंट पास करते हैं इसको, 80 वोल्ट का. तो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर आता है, और आफ्टर 1 to 2 hours, आफ्टर 1 to 2 hours क्या होता है, जो DNA है डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट का, डिफरेंट वेट का DNA है, वह इस जेल में यहां सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स. बैंड के फॉर्म में यह DNA, यहां से करंट पास हो रहा है. करंट पास होते क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के DNA इसमें सेपरेट हो जाते हैं, और फिर
इफ यू इस जेल को जब आप ट्रांस इल्यूमिनेटर में रखते हैं, ट्रांस जिसमें यूवी सोर्स होता है, रखते ही जो डीएनए है वह फ्लोरोसेंस करने लग जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कितने बेस पेयर के कितने मॉलिक्यूलर वेट के और बेस पेयर के टुकड़े इसके अंदर आपको सेपरेट हुए मिलेंगे। हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो पीसेस है डीएनए के पहले ही सेपरेट हो जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ाते रहते हो लोअर मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए अलग अलग बैंड्स में सेपरेट होता रहता है। इस प्रकार आप डीएनए को विजुअलाइज कर सकते हो बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आफ्टर एवरी स्टेप you have to do electrophoresis to visualize the DNA on agarose gel electrophoresis. So this is a main procedure of electrophoresis. Thank you very much.